أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما كثيرا كثيرا. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا. الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوت رد کنی ور قبول منو دست و دامہ آل رسول. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تم ہی قصہ مختصر.
اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود تاجدار مدینہ علی صلاۃ و سلام دی ذات بابرکات تے پڑھنے تو بعد حق تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالیٰ نہ چیز دے دل دماغ نو نگاہ زبان نو ہر قسم دی خطا تو معصوف فرماوے اور حق تعالیٰ دے سچے فقیراں دے جوڑیاں دا صدقہ دین متین دیاں سچیاں گلاں کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ رب العالمین دا شکر ہے کہ جس دی توفیق دے نال اسی جمعۃ المبارک دیاں بابرکت باعظمت گڑیاں دے اندر مسجد دے وچ بیٹھے ہاں۔ خالق کائنات ساڈا اتھے بیٹھنا آنا جانا سننا سناؤنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے سانو ساریاں نو سن سنا کے اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ تو حضرات محترم، اج دے جمعۃ المبارک دا موضوع جس طرح کہ اج 17 رمضان المبارک ہے تے اس دن اسلام دی ساریاں نالوں پہلی جنگ ہوئی ہے جس کا نام ہے جنگ بدر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ صلاۃ وسلام دے غلاماں نے اور آقا علیہ صلاۃ وسلام نے خود اس جنگ دے اندر حصہ لیا ہے تو انشاءاللہ اج دے جمعۃ المبارک دے اتے جنگ بدر بیان کی جاوے گی۔ خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعائے کہ خالق کائنات مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرماوے اور سانو ساریاں نو سن سنا کے اس دے اتے عمل دی توفیق عطا فرماوے۔ تو حضرات محترم، قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں میں کہتے کریمہ دے چند کلمات پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ خالق کائنات نے جنگ بدر دا جڑا واقعہ ہویا ہے اللہ رب العالمین نے اس ایت کریمہ دے اندر اس واقعہ دا ذکر کیتا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے سونے محبوب یاد کرو دن جدوں اسی بدر دے اندر جدوں تواڈے کولے سامان بھی کوئی نہیں سی، تواڈے کولے اتنیاں تلواراں بھی کوئی نہیں سی، تواڈے کولے اتنیاں سواریاں بھی کوئی نہیں سی، لیکن اسی سونے محبوب تانوں کافراں دے اتے فتح عطا فرمائی۔ تو حضرات محترم، اے جنگ بدر دا پس منظر کی ہے، اے جنگ بدر ہوئی کیوں؟ اس دا پس منظر یہ ہے کہ ابو سفیان مکے دے وچوں ایک تجارت دا قافلہ لے کے ملک شام کی طرف گیا تے اتھے جا کے تجارت کی تھی۔ سارے مکے والیاں دا اس دے اندر سامان سی، تجارت ہوئی تے جدوں تجارت کر کے وہ قافلہ واپس آ رہا سی تے آقا علیہ صلاۃ وسلام نو پتہ چل گیا کہ کافراں دا ایک قافلہ جڑا ہے وہ مدینہ المنورہ دے وچوں گزر کے جاوے گا تے آقا علیہ صلاۃ وسلام نے اپنے یاراں نو اکٹھیاں کیتا تے آقا علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا میرے صحابہ مینوں پتہ چلیا ہے کہ ابو سفیان دا جڑا قافلہ ہے وہ شام تو تجارت کر کے تے واپس آ رہا ہے۔ اگر آپ اس قافلے نو روک لئیے، اگر آپ وہ قافلے نو روک کے جڑا انہاں دے کولے ساز و سامان ہے وہ لے لئیے تے اللہ رب العالمین اس سامان دے صدقے سانو بہت زیادہ ترقیاں عطا فرما دینے۔ تے آقا علیہ صلاۃ وسلام دے یاراں نے عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جس طرح تہاڈا حکم ہوئے اسی اس قافلے نو روک لواں گے تے جڑا انہاں دے کولے مال ہے وہ انہاں دے کولوں لے لواں گے۔ تے جدوں آقا علیہ صلاۃ وسلام نے یہ مشورہ کیتا اپنے صحابہ کرام دے نال تے آقا علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا جاؤ دو بندے اس قافلے دا پتہ تے کر کے آؤ کہ قافلہ وہ آ کتھے رہا ہے۔ آقا علیہ صلاۃ وسلام نے دو بندیاں نو اونٹ دے اتے بھیجیا، جدوں اٹھ دے اتے بھیجیا وہ قافلے دے قریب گئے، پتہ چل گیا انہوں نے کہ قافلہ کتھے آ رہا ہے۔
तो उधरों अबू सफियान नूं भी पता चल गया कि कोई साडी ताक दे अंदर आया है। तो हज़रत अबू सफियान ने काफिला रोकिया, हजे आपने कलमा नहीं सी पढ़िया। काफिला रोक के तो अपने काफिले वालियां नूं कहण लगे, क्या काफिले वालिओ तुसी कोई अजनबी बंदे वेखे ने? वो अर्ज करते हैं कि हाँ अबू सफियान असी बंदे तो वेखे ने, और दरख्त के थले वो बंदे थोड़ी देर उन्होंने आराम किया है तो फिर वापस चले गए ने। तो अबू सफियान ने काफिला रोकिया तो उस दरख्त के थले गए, जाके वेख्या कि उत्थे ऊठ दे पैरों के निशान नज़र आए, नाले जिहड़ा ऊठ का गोबर सी वो नज़र आया। तो जिहड़े हज़रत अबू सफियान सन आप बड़े दना सन, आपने उस गोबर नूं ठुड्डा मारिया। ठुड्डा मार के जो वेख्या उस गोबर दे विचों खजूरां दीयां गुठलियां निकलियां, खजूरां दीयां गिड़कां निकलियां। तो हज़रत अबू सफियान अपने काफिले वालियां नूं जाके कहण लगे, काफिले वालिओ मैनूं ये पता चल गया है कि वो जिहड़े बंदे साडी ताक दे अंदर आए ने वो बंदे मदीने दे बंदे ने। तो लोग पूछते हैं कि अबू सफियान तुहानूं किस तरह पता चलिया है? तो अबू सफियान कहने लगा कि मेरे काफिले वालिओ मैं जिहड़ा उन्हां दे ऊठां दा गोबर वेख्या है उहदे विच जिहड़ियां मैं खजूर दीयां गुठलियां वेखियां ने वो गुठलियां कोई आम खजूरां दीयां गुठलियां नहीं, वो मदीने दीयां खजूरां दीयां गुठलियां ने। तो वो बंदे जिहड़े ने वो साडी ताक दे अंदर आए सन, उन्होंने पता चल गया कि वो साडे काफिले नूं मुस्तफा करीम अली सलातो व सलाम दे गुलाम लुटना चाहते ने। तो अबू सफियान ने उत्थे ही काफिला रोकिया तो एक बंदे नूं भेजिया कि जा मक्के दे विच जाके ऐलान कर दे कि मक्के वालिओ मुस्तफा करीम अली सलातो व सलाम और उन्हां दे गुलाम तुहाडे काफिले नूं लुटना चाहते ने, तो आओ अगर तुसीं अपने काफिले नूं बचा सकते हो तो बचा लो। तो हज़रात मोहतरम ओ बंदा सफ़र करदा जो मक्कातुल मुकर्रमा के करीब पहुंचा है, मक्कातुल मुकर्रमा की एक पहाड़ी के उत्ते खड़े होके ऐलान करदा है, ओ मक्के वालिओ मेरी गल सुन लवो, मुस्तफा करीम अली सलातो व सलाम और उन्हां दे यार तुहाडे काफिले नूं लुटना चाहते ने, अगर बचाना चाहते हो तो अपने काफिले नूं बचा लो। जो अबू जहल ते अबू लहब ने आवाज़ सुनी, उन्होंने पता चल गया कि साडे काफिले नूं लुटिया जा रहा है, क्योंकि उहदे विच सारे मक्के वालियां दा समान सी। सारे मक्के वालियां ने अपना अपना समान जिहड़ा सी तजारत के वास्ते भेजिया होया सी। उन्होंने कहा अगर साडा काफिला लुटिया गया तो साडे पल्ले कुछ नहीं पैना। तो अबू लहब अबू जहल उन्होंने प्रोग्राम बना लिया, अपने सारे नौजवानों उन्होंने इकट्ठा किया। उन्होंने कहा चलो जाके असी मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामां दे नाल जंग करनी, अगर वो साडे काफिले नूं लुटना चाहते हैं तो असी जाके उन्हां दे नाल जंग करांगे। उन्होंने अपने नौजवानों नूं इकट्ठिया कर लिया, 1000 बंदे का लश्कर उन्होंने इकट्ठा कर लिया, 700 ऊँट इकट्ठे कर ले, 100 घोड़ा इकट्ठा कर लिया, जिरा तलवार नेजे तीर हर शह उन्होंने अपना असला जोड़ा अपना साजो समान जोड़ा उन्होंने पूरा कर लिया। तो उधर आका अली सलातो व सलाम नूं भी पता चल गया कि मक्के वाले साडे नाल जंग करने वास्ते आ रहे हैं। तो आका अली सलातो व सलाम नूं जदों पता चलिया तो आका अली सलातो व सलाम ने आवाज़ा बुलंद किया कि मक्के वाले मदीने वालिओ मेरे यारो, वो मक्के वाले काफिर साडे नाल जंग करने वास्ते आ रहे हैं, क्या तुसी जंग लड़न वास्ते तैयार हो? तो आका अली सलातो व सलाम दे सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, अगर वो साडे नाल जंग लड़न वास्ते आ रहे हैं तो असी अपने खून का आखिरी कतरे तक बहा देंगे, लेकिन उन्हां दे नाल असी जंग जरूर करांगे। तो आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा मैनूं ये भी पता चलिया है कि उन्हां दी तादाद जिहड़ी है 1000 बंदा उन्हां दी तादाद है,
उन्हां दे कोले तलवारां भी बहुत ने, उन्हां दे कोले नेज़े भी बहुत ने, उन्हां दे कोले साजो समान भी बहुत है, लेकिन साडे कोले तो इतना साजो समान भी कोई नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिहदे कोले सवारी है ले आओ, जिहदे कोले कोई तलवार है ले आओ, जिहदे कोले कोई ज़िर्रा है ले आओ, जिहदे कोले कोई नेज़ा है ले आओ। साजो समान इकट्ठा होने लग पिया। थोड़ा जिहा साजो समान इकट्ठा होया। एक रवायत के अंदर आउंदा है कि 2 घोड़े ते 80 ऊँट आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामां दे कोलों इकट्ठे होए ते थोड़ियां जिहियां तलवारां ते 4-5 ज़िर्रा जड़ियां तलवार दा वार रोकदियां ने ते तलवारां भी उन्हां दे कोले ऐसो जिहियां ने जिन्हां नूं जगाल लगा होया है, जड़ियां जिस्म नूं कट नहीं सकदियां, खुंडियां तलवारां ने। लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा इकराम दा जज्बा सी कि असी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्तों अपनी जान कुर्बान कर देंगे। जदों साजो समान इकट्ठा हो गया, उधरों मक्के वाले काफर भी इकट्ठे हो के उन्होंने भी अपना सफ़र शुरू कर दिता। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों आवाज़ा बुलंद किया, एक औरत है मदीने शहर के अंदर जिहदा भाई भी कोई नहीं, जिहदा खामद भी फौत होया है, लेकिन नन्हे नन्हे छोटियां छोटियां उम्रां ने बच्चियां दियां ते सिर्फ 2 बच्चे ने। तो जदों घर के अंदर परेशानी की हालत के अंदर किते मेरा भी कोई भरा हुंदा, मेरा भी खामद हुंदा, तो मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल उहनूं जंग के अंदर भेज दी। जदों घर के अंदर आई तो परेशानी है चेहरे के उत्ते, ते नन्हे नन्हे 2 शहजादे कहन लगे माँ तू परेशान क्यों है? कहन लगियां पुत्रा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग का ऐलान किया है, मैं परेशान इस वास्ते हाँ कि किते मेरा भी कोई बेटा जवान हुंदा, कोई मेरा खामद हुंदा, मेरा भाई हुंदा, तो मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल उहनूं जंग दे उत्ते भेज दी। ते वो नन्हे नन्हे शहजादे हथ बन के अर्ज करते हैं माँ की गल है कि साडा बाप कोई नहीं, साडा कोई चाचा कोई नहीं, साडा कोई वड्डा भरा कोई नहीं, अम्मा तू परेशान ना हो, असी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल रल के जंग दे उत्ते जावांगे। तो कहन लगी पुत्रो तुहाड़ियां ते छोटियां छोटियां उम्रां ने, 10-10 12-12 साल की उम्र है, तो तुहानूं ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लश्कर दे विच भर्ती नहीं करना। तो अर्ज करते हैं अम्मा साडियां उम्रां भावें थोड़ियां ने, साडे विच जोर भावें थोड़ा है, लेकिन असी काफरां दे मुकाबले दे विच शेर बन के लड़ांगे। तो जदों अम्मा ने गल सुनी तो अपने बच्चों को तैयार किया, पुत्रा जाओ फिर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह दे विच जाओ, तो जाके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह दे विच अर्ज करो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह असी भी तुहाडे नाल जंग ते जाना चाहते हैं। तो हज़रात मोहतरम ओ बच्चे जो अपने घरों बाहर निकले, आंडना गवांडना वेखदियां नहीं कि बच्चियां ने नन्नियां नन्नियां तलवारां फड़ियां होइयां ने, सर दे उत्ते इमामे नहीं, जंग वाले लिबास पाए हुए ने, अपने घरों जो चले तो वह आंडना गवांडना उस अम्मा दे कोले आ जांदियां ने, आन के कहदियां ने बीबी तेरे बच्चे किथे जा रहे हैं? तो अम्मा कहती है ऐ मेरे महल्ले वालियो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जंग का ऐलान किया है, मेरे कोले होर ते कुछ नहीं सी, नन्हे नन्हे मेरे 2 बच्चे सन, मैं यही आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर भेज दिते ने। तो कहन लगियां अम्मा तेरा खामद कोई नहीं, तेरा सहारा कोई नहीं, यही बच्चे ने तेरिया अखां दी ठंडक, यही बच्चे तेरा सहारा ने, अगर यही जंग दे विच शहीद हो गए तेनू पानी ले आन के देण वाला कोई नहीं होवेगा, तेनू सौदा ले आन के देण वाला कोई नहीं होवेगा, तेरी खिदमत करने वाला कोई नहीं होवेगा। ओ मां कहती है मैनू इन्हां चीज़ां दी लोड़ कोई नहीं, मैनू अपने बच्चों के नालों वध के
मुस्तफा करीम अली सलातो व सलाम दे नाल प्यार है। ते वो बच्चे चलदे चलदे आका अली सलातो व सलाम दी बारगाह दे अंदर हाज़र हो जाते हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह असी तुहाडे नाल जंग लड़न वास्ते जाना वा, तुहाडे नाल असी तुहाडे लश्कर दे विच शामिल होना चाहते हैं। तो आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया बच्चिओ हजे तुहाडियां छोटियां छोटियां उम्रां ने, तुसी जंग दे विच जाके की लड़ोगे। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह साडे विच जज्बा बड़ा है, असी जाके काफिलां दे नाल लड़ांगे। ते आका अली सलातो व सलाम ने जड़ा वड्डा बच्चा सी उहदी उम्र तकरीबन 13-14 साल सी। ते आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया कि चल तेरी उम्र जरा ज़्यादा है, तेरा कद काट भी ठीक है, तेरे अंदर जोर भी ठीक है, चल तेनू मैं कबूल करदा वां, तू साडे नाल जंग ते जा। ते जेड़ा छोटा बच्चा सी वो रो के आका अली सलातो व सलाम दी बारगाह दे विच अर्ज़ करदा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे वड्डे भाई ने तो तुसी कबूल कर लिया है, लेकिन इहदे नालों ज़्यादा मेरे अंदर ताकत है। मैं भावें निक्का वां लेकिन मेरे विच ताकत इहदे नालों ज़्यादा है। ते आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया किवें तेरे अंदर ताकत है। अर्ज़ करदा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह साडी तुसी घोल करा के वेख लवो, अगर तो मैं अपने वड्डे भाई नूं ढा लिया तो मैनू जंग दे विच लै जाना, अगर ना ढाया तो मैनू वापस अपने घर भेज देना। ते आका अली सलातो व सलाम बड़े राज़ी होए। ते आका अली सलातो व सलाम मुस्करा के कहन लगे कि ठीक आ चलो मैं तुहाडी कुश्ती कराउना वां। ते दोनों बच्चों की आका अली सलातो व सलाम ने कुश्ती कराई। ते छोटा वीर अपने वड्डे वीर के कान के अंदर कहन लगा ए भाई जान तुहानू ते आका अली सलातो व सलाम ने कबूल कर ही लिया वा, ते जिन्हों आका अली सलातो व सलाम कबूल कर लैन फिर उन्होंने आका अली सलातो व सलाम वापस नहीं भेजते, तू मेरे को ढह जा मैं भी आका अली सलातो व सलाम की बारगाह दे विच कबूल हो जावांगा। उस बच्चे का जज्बा वेखो कि छोटियां छोटियां उम्रां ने लेकिन आका अली सलातो व सलाम के नाम तो कुर्बान होने का जज्बा वेखो। उन्हां दे अंदर लड़ाई हुई तो जदों वो वड्डा जिहड़ा बच्चा सी उहदे कोलों अपने छोटे वीर दे कोलों ढह गया, तो जदों वो छोटा वीर अपने वड्डे वीर दे उत्ते आया तो आका अली सलातो व सलाम नाले दौड़ते दौड़ते उन्हां दी तरफ आ रहे हैं। ते नाले आका अली सलातो व सलाम फरमा रहे हैं बख बख ओ वाह वाह ओ वाह बच्चिया तू कमाल कर दी है। तो आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया चल ठीक आ तू भी साडे नाल जंग ते जा सकदा है। तो दोनों बच्चों आका अली सलातो व सलाम ने कबूल कर लिया। तो थोड़ा जिहा साजो समान थोड़ा जिहा खान पीन वास्ते समान लैके तो आका अली सलातो व सलाम ने जंगे बदर का सफ़र शुरू कर दिता। तो आका अली सलातो व सलाम चलदियां चलदियां थोड़ियां जिहियां सवारियां ने आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया 3-3 4-4 जाने हो के सवार हो जाओ। तो आका अली सलातो व सलाम दे नाल एक हज़रत अली अल मुर्तज़ा और एक हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक सरकार आप दे नाल सवार हो गए। तो आका अली सलातो व सलाम उन्होंने उठ के उत्ते सवार किया। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक सरकार ने ऊँट की महार अपने मोढे के उत्ते रखी तो लैके चल रहे हैं आका अली सलातो व सलाम नूं। ते जदों आका अली सलातो व सलाम का सफ़र पूरा हो गया जितना हिस्से के अंदर आउंदा सी तो आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया अली सवारी नूं रोको। सवारी नूं रोकिया जा गया तो आका अली सलातो व सलाम सवारी तो थल्ले उतरे। तो आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया अली हुण तुसी सवार हो, मैं महार पढ़ के अगे चलांगा, तुसी सवारी दे उत्ते सवार हो। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह असी तुहाडे गुलाम हाँ, असी ते अपने मुकद्दरा दे उत्ते नाज पे करते हैं कि असी उस सवारी दी महार अपने मोढे ते रख के चल रहे हैं जिहदे उत्ते अल्लाह दा सोहना हबीब सवार होके जा रहा है। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह असी ये नहीं काम कर सकते कि तुसी पैदल चलो,
ते असी सवारी दे उत्ते सवार होइए। ते आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया अली ये गल नहीं, अज इंसाफ की गल है। इंसाफ ये आ कि जितना जितना रास्ता वंडिया गया है उतना उतना तुसी भी सवार हो, मैं महार फड़ के तुहाडे अगे अगे चलदा। ते आका अली सलातो व सलाम ने उन्होंने सवार कराया। ते आका अली सलातो व सलाम महार पकड़ के चल रहे ने। एक मकाम आया जिथे आन के रात पै गई। ते आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा तुसी आराम करो, मैं तुहाडा पहरा देना। ते मेरे मुस्तफा करीम अली सलातो व सलाम दे सहाबा सारी रात आराम करते रहे। मेरे आका अली सलातो व सलाम उन्हां दा सारी रात जाग के पहरा दिंदे रहे। ते आका अली सलातो व सलाम ने सुबह दा वक्त होया ते अपने सहाबा इकराम नूं उठाया, मेरे सहाबा उठो सुबह दा वक्त हो गया है। सुबह दा वक्त होया, आका अली सलातो व सलाम ने अपने सहाबा इकराम नूं उठाया, सारे ने नमाज अदा की। ते मेरे आका अली सलातो व सलाम ने जदों मजमा लगा लिया ते मेरे आका अली सलातो व सलाम ने जहाद दी फजीलत दे उत्ते खिताब कीता, अपने यारां दे खून नूं गरमाया। ते आका अली सलातो व सलाम दे यार अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हजरत मूसा अली सलातो व सलाम दे उम्मतियां ने देखिया सी जा तुसी जाके लड़ो, जब तुहाडा रब जाके लड़े। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह असी हजरत मूसा अली सलातो व सलाम दे उम्मतियां दे विचों नहीं, असी ते मुस्तफा दे गुलाम। या रसूल अल्लाह जितनी देर तक साडे जिस्म दे अंदर खून दा आखिरी कतरा बाकी है, या रसूल अल्लाह असी काफरां दे नाल जाके जंग लड़ांगे। तो हज़रात मोहतरम सफ़र करदियां करदियां वो मैदान आ गया जिस मैदान नूं बदर दा मकाम कहा जाता है। ते आका अली सलातो व सलाम दे वास्ते सहाबा इकराम ने एक छप्पर तैयार किया, एक खैमा तैयार किया। ते अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह तुसी इस खैमे दे अंदर जलवागार हो जाओ। ते उधर काफर भी बदर दे मकाम दे उत्ते आ गए ने। ते उन्होंने जिहड़ी जगह लभी है वो जगह सख्त जगह है, ते जिहड़े आका अली सलातो व सलाम दे गुलामां नूं जगह लभी है वो रेतली जगह है। ते आका अली सलातो व सलाम दे गुलाम जदों चलदे ने ते उन्हां दे पैर जिहड़े ने रेत दे अंदर खुबदे जा रहे ने। ते आका अली सलातो व सलाम दे सहाबा अर्ज करदे ने या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह उन्हां काफरां नूं जिहड़ी जगह लभी है वो तो सख्त जगह है, ते सानू जिहड़ी जगह लभी है ये रेतली जगह है, साडे कदम रेत दे विच खुबदे जा रहे हैं। ते आका अली सलातो व सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा तुसी फिक्र ना करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन साडी मदद करनगे। तो हज़रात मोहतरम बदर दे मकाम दे उत्ते मेरे आका अली सलातो व सलाम ने अपने सर नूं सजदे दे अंदर रख दिता। ते आका अली सलातो व सलाम अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदे ने मौला जिहड़े मेरे थोड़े जे यार सन मैं तेरी बारगाह दे विच लैके आ गया वां, अगर मौला शहीद हो गए मौला धरती दे उत्ते तेरा नाम लैन वाला कोई नहीं होगा। मौला मैं थोड़े जे सहाबा लैके आया वां, साडे कोले साजो समान भी ज्यादा कोई नहीं, साडे कोले तलवारां भी ज्यादा कोई नहीं। ए मौला तू ही साडी मदद करनी है, मौला साडी मदद कर। मेरे आका अली सलातो व सलाम ने जदों दुआ की थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या जिब्रील, अर्ज की थी जी रब्बे जलील, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जा जिब्रील 70,000 फरिश्ता ले जा, हर हर फरिश्ते नूं तलवार पकड़ा दे, जंगी लिबास पहना दे, सरां दे उत्ते इमामे पहना दे, जा अज जमीन दे
उत्ते जाओ मेरे सोने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जाके मदद करो। उधरों बारिश छम छम बरसन लग पई ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामां ने एक वड्डा सारा टोया कढ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਜ਼ਸ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤਿਲਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਿਲਕ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਧਰ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ गए ने। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे गुलामों मैं तुहानू क्या नहीं सी अल्लाह रब्बुल आलमीन साड़ी मदद करनगे। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ़ां सीधियां कीतियां। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अनहु पाक सरकार दे नाल बुला के मशवरा करते हैं कि ऐ उमर ऐ अबू बकर साफ बंदी किस तरीके दे नाल कीती जावे। ते हज़रत उमर फ़ारूक बोल के कहते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह साफ बंदी किस तरह करनी आ, जेड़े साडे रिश्तेदार काफिर ने वो मैनू दे दिओ मैं उन्होंने कतल कर देवांगा। ते जेड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक सरकार दे रिश्तेदार ने वो इन्हां नूं दे दिओ। जिन्हां दे रिश्तेदार उन्हां काफिरां दे अंदर मौजूद ने हर सहाबी नूं उन्हां दे रिश्तेदार दे दिओ, असीं उन्हां नूं वासिले जहन्नम कर देंगे। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाले मुस्कुरा पे ते नाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उमर तेरियां शाना बड़ियां ने, ये तेरा अहदिया मैनू बड़ा पसंद आया है, लेकिन जंग इस तरह नहीं होंदी। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सफ बंदी की। जदों सफ बंदी हो गई तो उधर काफिरां दे विचों तीन उन्हां दे पहलवान जिहदा नाम एक दा नाम उत्बा है, एक दा नाम शैबा है, एक दा नाम वलीद बिन मगीरा है, वो आ गए। आन के कहने लगे आओ मुस्तफा दे गुलामां दे विचों है कोई साडा मुकाबला करने वाला। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इन सारी जेड़े मदीने दे विच रहन वाले गुलाम सन, तीन गुलाम उठ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह असीं इन्हां दे मुकाबले ते जाइए। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाओ इन्हां दा मुकाबला जाके करो। ते जदों तीन सहाबा उन्हां दे मुकाबले ते गए, उन्होंने पूछा कि तुसी कौन हो, तुसी अंसारी हो या महाजर हो? वो कहने लगे असी अंसारी हाँ, असी मदीने दे रहन वाले हाँ। वो कहने लगे असी तुहाडे नाल जंग नहीं करनी, तुहाडे नाल साडा मुकाबला नहीं बनदा, जाओ किसी अपने वड्डे पहलवानां नूं भेजो। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों ये गल सुनी कि ये सानू ललकार रहे ने, ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अमीर हमजा, मेरा चाचा अमीर हमजा किथे आ? हज़रत अमीर हमजा उठ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हाज़र हो जाते हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाज़र हाँ। ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरा वीर अली किथे आ? हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक सरकार भी आ गए ने। ते हज़रत अबू अबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक सरकार भी उठ के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे अंदर हाज़र हो जाते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह असीं तिन्नों जाके इन्हां काफिरां दा मुकाबला करते हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जाओ इन्हां दा जाके मुकाबला करो। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा और हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत अबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक सरकार जदों उन्हां दे मुकाबले दे अंदर गए तो हज़रत अमीर हमज़ा ने शैबा नूं पकड़ लिया। तो हज़रत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पाक सरकार ने वलीद बिन मगीरा नूं पकड़ लिया।
تے حضرت عبیدہ بن جراح نے عتبہ دے نال مقابلہ کرنا شروع کیتا تے حضرت امیر حمزہ نے ایک وار کیتا انہوں واصل جہنم کر دیتا. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نے بھی وار کیتا انہوں واصل جہنم کر دیتا. تے حضرت عبیدہ بن جراح او دے نال مقابلہ کر رہے نے تے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دی گوڈے دے اتے وار ہویا تے آپ تھلے تشریف لے آئے. جدوں وہ شہید کرن لگا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار دوڑ دیاں جا کے انہوں بھی واصل جہنم کر دیتا. جڑا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جڑا زخمی ہویا سی حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ پاک سرکار نو چک کے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر لے آندے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا او غلام جڑا زخمی حالت دے اندر ہے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کردا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں میدان دے اندر تے شہید نہیں ہو سکیا. یا رسول اللہ اگر میری ایتھے موت ہوئے تے مینوں شہادت دا رتبہ لبے گا کہ نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے بیٹا تو پریشان نہ ہو تو جدوں بھی تیری روح پرواز کرے گی تینوں ادو ہی شہادت کا رتبہ مل جاوے گا. جدو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آئے ہون گے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کر دے ہون گے کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی تواڈے غلام رمضان المبارک دے روزے بھی صحیح طریقے دے نال نہیں رکھ سکے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اسی عبادتاں بھی نہیں کر سکے. یا رسول اللہ اسی تراویح بھی صحیح طریقے دے نال پڑھ نہیں سکے لیکن تیرے در تے آئے ہاں. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسی اللہ پاک دے سونے گھر دے اندر بیٹھے ساڈیاں عبادتاں پتہ نہیں قبول ہونیاں یا نہیں ہونیاں. یا رسول اللہ تواڈیاں اڑیکاں لگا کے بیٹھے ہوئے کھلی رکھی اسی ہو نینا والی باری اڑیک سانو مدنی دی کھلی رکھی اسی او نینا والی باری اڑیک سانو مدنی دی کدوں آوے گی او سونے دی سواری اڑیک سانو مدنی دی کدی آوا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آوا غریباں دے محلے یا رسول اللہ.
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदमां दे विच उन्हां दा जिस्म पिया होया ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच अर्ज़ां कर रहे ने। जंग शुरू हो गई ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा काफिला नूं वासिले जहन्नम करी जा रहे ने ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निशान लगाए हुए सी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इत्थे अबू जाल कतल होवेगा, इत्थे अबू लाब कतल होवेगा, इत्थे आ काफिर कतल होवेगा। ते जो जंग जारी है सहाबा कराम अर्ज करते हैं असी हजे काफिर का निशाना ही लेने वो काफिर पहले ही वासिले जहन्नम हो जाता, क्योंकि आसमाना के उत्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्ते भेजे हुए सन। वो फरिश्ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामां दे नाल रल के ते जंग लड़ रहे सन। तो ज़रात मोहतरम जंग ख़त्म हो गई, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामां नूं फतह मिल गई ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामां ने उन्हां दा साजो समान जिहड़ा सी वो भी कब्जे दे अंदर लै लिया। कुछ जिहड़े काफिर सन उन्हां नूं गिरफ्तार कर लिया ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं फतह अता फरमा दी। वो थोड़े सन 313 सन, लेकिन उन्हां दे अंदर जज्बा इतना सी, उन्हां नूं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल मुहब्बत इतनी सी, उन्हां नूं पता सी कि रब दा रसूल साडे नाल है, कदी सानू शिकस्त नहीं हो सकती। ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां नूं फतह अता फरमा दी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामां नूं फतह मिल गई, माले गनीमत आ गया। तो ज़रात मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, मेरे सोने महबूब असी तुहानू बदर दे विच फतह अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने फतह अता फरमा दी। जंगे बदर जिहड़ी है ख़त्म हो गई। तो ज़रात मोहतरम उन्हां दा जज्बा रोज़े की हालत के अंदर उन्होंने जंग लड़ी, उन्होंने अपन जाना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ात के उत्तों कुर्बान कीतियां ते अज भी उन्होंने नाम जिंदा ने। तो मेरे दोस्तों अज 17 रमज़ान अल मुबारक है तो 20 रमज़ान अल मुबारक नूं इतकाफ के उत्ते बैठा जाता है। तो मेरे दोस्तों इतकाफ का इतना सवाब है, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा एक दिन का इतकाफ अल्लाह पाक ने सोने घर के अंदर बैठ के कर लेंदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसनू जहन्नम तो इतना दूर कर देंदे ने कि जितना मशरक व मगरब दे विच फासला है। ये एक दिन के इतकाफ की फजीलत है कि जेड़ा बंदा 10 दिन अल्लाह पाक की बारगाह के अंदर बैठेगा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसनू गुनाहां तो इस तरह पाक कर देंगे जिस तरह वो अपनी अम्मा के पेट के विचों हुणे ही पैदा होया। तो मेरे दोस्तों इतकाफ का इरादा बनाओ, अल्लाह पाक की बारगाह के विच बैठो। सारी उम्र असी काम ही करने ने, सारी उम्र असी पैसे ही कमाने ने, लेकिन ए जिहड़े 10 दिन ने अगर ये असी अल्लाह की रज़ा वास्ते कढ़ लईए तो असी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू कितना सवाब अता फरमा देंगे। अगर कोई किसी के दिल दे विच इरादा है, कोई वो काम करना चाहता है, वह काम नहीं हो रहा, तो 10 दिन अल्लाह के घर के अंदर बैठ के इतकाफ कर लवे तो अल्लाह पाक की बारगाह दे विच इतकाफ दे विच दुआ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो जिहड़ा काम करना चाहता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसनू कामयाबियां अता फरमा देंगे। तो मेरे दोस्तों 2 साल हो गए ने साडी मस्जिद के अंदर कोई इतकाफ से नहीं बैठा। किड्डा वड्डा साडा महल्ला वा, सारा अगर एक मस्जिद के अंदर भी बंदा ना बैठे सारा महल्ला गुनाहगार होता। तो कोशिश करो कि 20 रमज़ान अल मुबारक आने वाला है, अगर एक बंदा भी चलो 1-2 बंदे ही बैठ जान मस्जिद के अंदर, इरादा कर लो अज कि असी ज़रूर इंशाअल्लाह इतकाफ से बैठांगे। अगर तुसी अज इरादा कर लिया तो अज तो ही तुहाडियां इतकाफ दीयां नेकियां शुरू हो जाणगियां। तो मेरे दोस्तों ज़रूर है कि इतकाफ से बैठो, क्योंकि मस्जिद अगर वैरान हो गई तो साडे पूरे महल्ले के उत्ते जवाल आएगा, साडा पूरा महल्ला गुनाहगार होगा। क्योंकि अगर एक भी बंदा बैठ गया समझ लो पूरे महल्ले के उत्ते अल्लाह दी रहमत हो जाएगी। तो सदका फितर जिहड़ा रमज़ान अल मुबारक दे विच असीं दिन्ने आ, वो हुण जिहड़ा सदका फितर बन रहा एक बंदे का 100 रुपया बन रहा। एक दिन के बच्चे तो लैके
तो जितना भी जवान नौजवान जितने भी घर के अंदर फर्द ने अगर एक दिन का भी बच्चा पैदा होया वह भी सदका फितर देना साढ़े उत्ते वाजिब है। तो सदका फितर जिहड़ा है सारिਆਂ तो पहले सदका फितर का हकदार कौन है? अगर तुहाडा कोई करीबी रिश्तेदार है, तुहाडा कोई भरा है या तुहाडी कोई भैन गरीब है, तुहाडा कोई रिश्तेदार जिहड़ा करीबी है, सारिਆਂ तो पहले अपने रिश्तेदारां दे विच वेखो कि कोई साडे सदका फितर का हकदार तो नहीं। अगर कोई तुहाडा रिश्तेदार भैन भाई हकदार है तो सारिਆਂ तो पहले अपना सदका फितर जिहड़ा है उहनूं दवो। अगर तुहाडे रिश्तेदारां दे अंदर कोई नहीं तो फिर अपने हमसायां दे अंदर वेखो, अपने महल्ले दे अंदर वेखो कि कोई साडे महल्ले दे अंदर गरीब तो नहीं। अगर महल्ले दे अंदर भी गरीब नहीं फिर अपने पिंड दे विच वेखो। सारिਆਂ तो पहले जिहड़ा सदका फितर का हकदार है वो अपना करीबी रिश्तेदार है। तो सदका फितर जिहड़ा एक बंदे का 100 रुपया बनता है तो 100 रुपया कम तो कम है। अगर कोई ज़्यादा देना चाहता है वो अंदर ज़्यादा हसीयत है तो ये तो 2.25 किलो गंदम की कीमत है। अगर कोई 2.25 किलो खजूर की कीमत देना चाहे वो भी दे सकता है, 2.25 किलो गोश्त की कीमत देना चाहे वो भी दे सकता है। कम तो कम जिहड़ा सदका फितर है वो 100 रुपया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे अंदर दुआए कि खालिक कायनात सानू अमल दी तौफीक अता फरमावे और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा जैसा सानू जज्बा अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।